Hello, बच्चों. Welcome to Talking Textbooks, leaving no child behind. We are going to start the questions, right? That means हम लोगों ने अभी तक इतना बड़ा चैप्टर पढ़ा है. We have learned about the 15 lectures, right? जिसमें से एक रिवीजन का लेक्चर भी था. So basically इतने बड़े चैप्टर को we are going to do some question based on that. हालांकि कुछ ऐसे पार्ट थे जो theoretical थे, कुछ ऐसे पार्ट थे जो यू कैन से न्यूमेरिकल बेस्ड फार्मूलाज हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको रिमेंबर करनी है. फॉर एग्जांपल द फार्मूलाज, द टेबल कंसेप्ट जो आपको रिमेंबर करने हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है. बिकॉज अगर आपके दिमाग में वो टेबल होंगे फॉर द टू स्फेरिकल मिरर्स एंड फॉर द टू लेंसेज, राइट, ये अगर 4 टेबल आपके दिमाग में रहते हैं देन यू कैन डू द न्यूमेरिकल्स वेरी वेल. ठीक है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि भाई ऑन एन अप्रॉक्स वेयर यू आर गोइंग टू गेट द इमेज और वेयर यू शुड बी प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट. तो इससे आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल सकता है, राइट. सो आई विल बी टेलिंग सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यू शुड प्रिपेयर. अगर आप पूरा चैप्टर नहीं प्रिपेयर कर पा रहे हैं तो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको पूरा प्रॉपरली अच्छे से अगर आप कर लेते हैं देन इट वुड बी 75% ऑफ द चैप्टर. Alright, and that is the main thing. You should do the important topics first of all, right, and then you should be doing all the necessary things जो कि आपको धीरे धीरे करना चाहिए, right. And इसी को देखते हुए हम आज questions practice करने वाले हैं. So make sure that you do watch this video lecture till the end. Alright, and you all know that ये जो questions हम लोग करने वाले हैं ये ओलंपियाड्स में ऑलरेडी आ चुके हैं. So आपको पता चलेगा कि किस तरह की नॉलेज आपके दिमाग में होना चाहिए and what type of thinking you should be having to solve such type of problems. All right, so that is the main thing we are going to learn today. Also these questions will be definitely helping you in getting an idea about the school examination questions also, right. So it would be so much helpful. So if you want DPP and study material you can access them through our Telegram channel. You can write the code TTB010 in the सर्च बॉक्स ऑफ द टेलीग्राम ऐप एंड देन ड्रॉप डाउन लिस्ट में 10 क्लास का चैनल अपीयर हो जाएगा. यू कैन ज्वाइन दैट चैनल एंड यू कैन एक्सेस ऑल द DPPs एंड स्टडी मटेरियल अवेलेबल ओवर देयर along with the notifications of the video classes. Alright, now see, this is the team which is going to help you a lot as हम लोग आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं and we are making sure that you get the knowledge you require to crack the examination or to achieve the goals you have set for yourself. That is the main thing we are trying to solve here, and we are providing you that much of the quality lectures you should be having right now. All right, so in accordance to that we have also prepared some packages for you all. So for that you need to go on our website www.talkingtextbooks.in. If you go on our website you will be getting the two type of packages over there. All right, the first one is the full package and the second is the test series. Full package includes all the necessary things, you need to be having, all right, so that you can crack any examination. Because ये जो आप 5 things देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, in the full package, these are the minimum things you should be having. For example, study material is a must thing because आप लोग वेंडर कर जाते हैं हाफ ऑफ द टाइम. अगर आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सो हाफ ऑफ द टाइम यू ओनली वेंडर अबाउट द बुक्स एंड द रिसोर्सेज यू शुड बी हैविंग. दैट इज द मेन थिंग. टाइम वेस्ट तो यही हो जाता है फर्स्ट टाइम में ही. दैट इज द मेन थिंग कि आपको पहले से पता होना चाहिए कि भाई मुझे यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है, ये मेरे लिए बेस्ट रिसोर्स है, आई वुड बी स्टडिंग फ्रॉम दिस डिसाइडेड बिफोर हैंड. ऑलराइट, तो दैट इज द मस्ट थिंग. आपको वंडर नहीं करना और उसमें वंडर करने वाला जो टाइम वेस्ट होगा वो तो सो अलग ही होगा, right. So ये time saving है that you are getting in comprehensive study material which is totally focused on the questions जिस तरीके के appear होंगे, focused on the material you should be having, the knowledge you should be having. So it would be a very much you can say all package you can say, right. तो बेसिकली आपको सब कुछ उसमें ही मिल जाएगा. तो दैट इज द कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल. नेक्स्ट कम्स द लेक्चर बिकॉज जनरली आप लोग सेल्फ स्टडी तो नहीं कर पाएंगे, राइट. पहले आप लोग लेक्चर से पढ़ेंगे देन यू विल बी डूइंग द सेल्फ स्टडी. तब आपका जो सेल्फ स्टडी होगा वो काफ़ी ज़्यादा यू कैन से प्रोडक्टिव हो सकता है, राइट. देन कम्स द होमवर्क सबमिशन पार्ट. आप सिर्फ बुक्स पढ़ लेंगे, लेक्चर्स देख लेंगे, वहीं पर ही आपकी जो मेथड है, जो आपका पढ़ने का तरीका है वो स्टॉप नहीं होना चाहिए. आपके पढ़ने के तरीके में खुद से लिखने वाला भी एक यू कैन से सेशन होना चाहिए जहाँ पे आप या तो क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे खुद से या फिर थ्योरेटिकल आंसर लिखेंगे, बट यू शुड बी राइटिंग, ठीक है. वो आपका मेन इंपॉर्टेंट होना चाहिए. दैट इज द होमवर्क सबमिशन, राइट. आपको होमवर्क करना होगा. आप स्टडी करेंगे बुक से, आप लेक्चर देखेंगे, उसके बाद आप होमवर्क करेंगे एंड तब जाके आप हमें सबमिट करेंगे. तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यू शुड बी हैविंग सो दैट यू गेट एन आइडिया हाउ टू गेट अप टू द आंसर. आंसर लाएं कैसे,
राइट आपको पता चलेगा कि आप कौन से फॉर्मूले में अटक सकते हैं। भाई आपको समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन में क्या है, तो आप क्या चीज़ यूज़ करेंगे, किस तरीके का थिंकिंग आपका होना चाहिए कि आप आंसर तक पहुंच जाएं। राइट नेक्स्ट कम्स दी बाई वीकली क्विजेस। अब क्योंकि आप सिर्फ लेक्चर देखेंगे, पढ़ेंगे, फिर कुछ से होमवर्क करेंगे, यहाँ पे आपका टेस्ट नहीं हो रहा है। राइट दैट इज़ वाई हर वीक में 2 बार आपका टेस्ट होगा। दैट इज वुड बी द गुड थिंग, क्योंकि एक छोटा क्विज टाइप का है, सो इट वुड बी अ क्विज बेस्ड, तो आपको सिर्फ डायरेक्टली क्विज देना होगा। इट वुड बी सो ईजी। सो बेसिकली ये आपको बताने के लिए कि भाई इस टॉपिक से इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकता है, इस टॉपिक से इस तरीके का क्वेश्चन भी हो सकता है। दैट वुड बी सो मच ईजी, सो इट वुड बी कूल। राइट नेक्स्ट कम्स द पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स, बिकॉज जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो पता होना चाहिए कि उस एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितना स्पीड होना चाहिए, कितना एक्यूरेसी होना चाहिए, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। और ये सब बातें बताएगा कौन? पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स। पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स बेस्ड है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे, उनके लेवल के क्वेश्चंस पे बेस्ड है। राइट दैट इज द मेन थिंग कि आपको उसका आइडिया पता चलेगा, एंड दैट इज वाई ये फुल पैकेज इज द ओवरऑल पैकेज यू नीड टू गेन दी good marks, alright, and that is why you should be having that. But अगर आप जैसे चाहते हैं कि यार I'm much smart and I will be starting on my own, but I just want to test myself, that mean you just need a test series, and that is why you can get that periodic test papers आपको मिलेंगे, bi-weekly quizzes आपको मिलेंगे, and the recorded and live classes. Alright, so if you want to buy them, then you can use my code CY Live to get a 30% discount. And if you want to know more about these packages, then you can call us on the number 919549041111. So, if you are ready to give us a call, then make sure you have that query and it will be resolved soon. Alright? Now promise yourself that you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes and you will be revising on a daily basis. That is a must thing you should do, because ये हैं तो सिर्फ 4-5 चैप्टर फिजिक्स के बेसिकली, बट दे आर वेरी 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 वास्ट। राइट आपको एक फिजिक्स से यू कैन से एक मच डेजिग्नेटेड आपको इतना पोर्शन तो फिजिक्स का मिलेगा ही मिलेगा। राइट उसमें क्वेश्चंस भी होंगे, सो यू शुड नॉट बी लैकिंग बिहाइंड जस्ट बिकॉज ऑफ द न्यूमेरिकल पार्ट और जस्ट बिकॉज ऑफ इट इज द फिजिक्स पार्ट। राइट तो ऐसा नहीं करना है, you should be having all the necessary information in your head, right? That is the main important thing. So what you need to do is you need to revise again and again. यही एक तरीका है जिससे आप पुराना पढ़ा हुआ जो कुछ भी अपने दिमाग में रिमेंबर कर सकते हैं। वो क्या है? रिवीजन। दैट इज द ओनली थिंग यू शुड डू। ऑलराइट अब देखिए, अब आते हैं हम ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस पे। राइट बट मैं आपको पहले ही बता दूं कि जब आप ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस को करेंगे, हो सकता है आपके लिए कुछ बहुत ईजी क्वेश्चंस हो सकता है आपके लिए सारे ही बहुत इजी क्वेश्चंस हो सकता है कुछ आपके लिए हार्ड क्वेश्चंस हो। ऑलराइट और ये भी हो सकता है कि कुछ बिल्कुल ऊपर से जाए। राइट सो दैट इज द मेन थिंग कि अगर आपको कोई नया इन्फॉर्मेशन खुद के लिए लगता है कि भाई मेरे लिए नई इन्फॉर्मेशन, नया फैक्ट है, नोट इट डाउन। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई थोड़ा हार्ड है, लेट्स ट्राई इट, और फिर भी गलत आंसर आ रहा है, नोट इट आउट। ठीक है, कुछ डायरेक्टली बिल्कुल यू कैन से फैक्ट बेस्ड है, बस आपको टिक 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 करना है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा यू कैन से फोकस क्वेश्चंस होते हैं कि भाई इनमें तो बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं। ऑलराइट सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू मेक श्योर भाई तुम्हारे लिए कौन सा जो क्वेश्चन है ईजी है, हार्ड है, वो तुम्हें डिसाइड करना है, और तो उस नॉलेज पे डिसाइड करना है जो तुम्हारे दिमाग के अंदर है। ऑलराइट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज दैट आपको क्या करना है, आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर के रिमेंबर करने हैं वो क्या क्या हैं। लेट मी टेल यू, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए न्यूमेरिकल। इस चैप्टर से अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, जैसे हमने क्या पढ़ा था, हमने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब पार्ट पढ़े थे। ऑलराइट एंड देन वी कम अप टू द ह्यूमन आई। राइट ह्यूमन आई वाला जो चैप्टर है उससे आपको जनरली यू कैन से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली थियोरेटिकल क्वेश्चंस मिलेंगे। ह्यूमन आई की वर्किंग, ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर, ह्यूमन आई का डायग्राम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या इसमें से 2 डिफेक्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। राइट ये आपको पता होना चाहिए। एंड इसके अलावा भी इसके अंदर थियोरेटिकल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंटली थियोरेटिकल आते हैं। मुश्किल से 1-2 न्यूमेरिकल आ सकता है। जब कभी भी आपको पूछा जाएगा व्हाट वुड बी द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस द पर्सन शुड बी हैविंग सफरिंग फ्रॉम मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, ये एक तरीके का न्यूमेरिकल आपको मिल सकता है। वहीं अगर हम ह्यूमन आई को छोड़ के बाकी चैप्टर की बात करते हैं तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में जो मिरर फार्मूला और जो यू कैन से लेंस फार्मूला है, ये दोनों फार्मूलेज आर वेरी इंपॉर्टेंट।
काफ़ी आते हैं। इसमें जनरली आपको नेचर ऑफ द इमेज पता, मतलब आपको फुल क्वेश्चन आना चाहिए जिसमें मैग्निफिकेशन भी यूज़ हो रहा है, कैलकुलेशन ऑफ दी रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, सब कुछ इन्वॉल्व हो रहा है। तो इसमें हम लोग कैसे कर सकते हैं कि भाई वो पूछेगा कि इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है। तुम्हें लेट्स से तुमको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया, तुमको बता दिया ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ी हुई है, तुम्हें नेचर ऑफ मिरर ये भी कुछ हिंट विंट दे सकते हैं। एंड देन दे विल बी आस्किंग कि भाई इमेज कहाँ बनेगी, इमेज का नेचर क्या होगा, इमेज का मैग्निफिकेशन क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको पूछने का, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये चीज़ आपको पता भी होना चाहिए। सो ये लेंस फॉर्मूला के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मिरर फॉर्मूला के लिए इंपॉर्टेंट, दोनों ही केसेस में। एक तो इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहिए, मैग्निफिकेशन कितना होगा इमेज का, और भाई जो इमेज हो रही है उसका नेचर कैसा है, हाईली डिमिनिश्ड है, रियल है, इन्वर्टेड है। तो ये सब चीज़ें आप लोग आराम से उन क्वेश्चंस की हेल्प से, इन दोनों फॉर्मूलेज की हेल्प से निकाल सकते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं दैट इज़ बहुत बाकी सब में से न्यूमेरिकल नहीं आता है, ठीक है। बाकी सब में से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रख दें तो फिर इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, तो वो तो टेबल के बेसिस पे है, राइट। तो अगर आपको टेबल रिमेंबर होगा तो आप इसका आंसर जल्दी से ईजिली कर सकते हैं, राइट। सो ऐसे क्वेश्चंस आपको मेनली इंपॉर्टेंट है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू यू इज आई का डायग्राम, ठीक है, आई का स्ट्रक्चर, आई की वर्किंग, ऑलराइट। दो इंपॉर्टेंट डिफेक्ट्स कौन कौन से आपको पता होने चाहिए, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ऑलराइट। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, कैसे मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करते हैं, कैसे नेचर ऑफ इमेज पता करते हैं, एंड कैसे इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ और यू कैन से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रिलेट करते हैं। अगर आपको ये पूरे चैप्टर का मेन पार्ट आता है तो आपको 75% ऑफ द चैप्टर इज टोटली लर्न अबाउट बाय यू। डेफिनेटली आपके दिमाग में है वो 75% चैप्टर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। ये चीज़ें आपको रिमेंबर करनी है इस चैप्टर में से इफ़ यू आर अनएबल टू डू द होल चैप्टर, ऑलराइट। सो दैट इज द मेन थिंग, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स डू सम क्वेश्चंस जो कि ईजी भी हो सकते हैं, हार्ड भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज बिफोर यू, ट्राई इट आउट, कोशिश करो सॉल्व करने का, ध्यान से समझने की कोशिश करो, ऑलराइट। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये एक लिटिल बिट कॉमन सेंस का भी है, लिटिल बिट स्मार्टनेस का भी है, एंड लिटिल बिट नॉलेज का भी है, ठीक है। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है एक रूम जिसका नाम है PQRS, ठीक है। आपको बताया हुआ है PQRS शोज द वॉल्स ऑफ अ रूम ईच मेजरिंग 8 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर ये PQRS इज अ रूम, ये एक रूम है, ठीक है। इट इज अ क्यूब रूम, ठीक है। अब आप देखो हर एक वॉल जो इसमें है वो 8 मीटर की है, ठीक है। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। और एक और बात, सच दैट वॉल PQ हैज अ फुल लेंथ प्लेन मिरर। तो देखो इस दीवार पे, PQ दीवार पे एक फुल लेंथ मिरर है, ठीक है, पूरा का पूरा फुल लेंथ मिरर है, जैसे कि यू कैसे जिम्स में आपने देखा होगा, ठीक है। तो जिम में ऐसा होता है कि भाई एक में जो पूरा का पूरा वॉल है वो पूरा मिरर की बना देते हैं, ठीक है। वैसे कई प्लेसेस पे बनाते हैं। तो देखिए आपको बोला गया है कि हर एक वॉल जो है वो 8 मीटर की है, ठीक है। तो PS 8 मीटर की होनी चाहिए, SR 8 मीटर का होना चाहिए, QR भी 8 मीटर का होना चाहिए, और PQ भी 8 मीटर का होना चाहिए, ठीक है। ये हमको पता चल गया। नेक्स्ट देखते हैं, अ कैमरा इज प्लेस्ड एट M पर कैमरा रखा हुआ है, द मिड पॉइंट ऑफ द वॉल SR के बिल्कुल बीचों बीच। अब SR के बिल्कुल बीचों बीच रखा गया है, मतलब S से इसकी दूरी कितनी है 4, और M से इसकी दूरी कितनी है नेक्स्ट 4 एंड 4, या समझ में आ गया। इन ऑर्डर टू टेक क्लियर इमेज ऑफ द पॉइंट R, अगर हमें R की इस पॉइंट की क्लियर इमेज लेनी है, द कैमरा शुड बी फोकस्ड एट, तो कैमरा कहां पर फोकस होना चाहिए, ये चीज हमको बताना है। तो देखिए बोला गया है क्या 4 मीटर पे फोकस होना चाहिए, क्या 8 मीटर पे फोकस होना चाहिए, क्या 16 मीटर पर होना चाहिए, या फिर मोर देन 60 मीटर्स होना चाहिए फोकस। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर हम ये चाहते हैं कि भाई R की जो इमेज है वो हमें बिल्कुल क्लियर नजर आए, ठीक है, तो पहली इंफॉर्मेशन तुम्हारे दिमाग में क्या होनी चाहिए कि भाई वो इमेज बनेगी कहाँ, तभी तो कैमरे को फोकस करवाएंगे हम लोग, राइट। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इमेज बनेगी कहाँ।
सो देखिए अब क्योंकि बिल्कुल सामने मिरर है और ये जो मिरर है वो कैसा मिरर है, ये जो मिरर है सिंपल मिरर है, प्लेन मिरर दिया हुआ है, राइट। और प्लेन मिरर के केस में हम इमेज डिस्टेंस कैसे पता कर सकते हैं, सेम एज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। तो मतलब ऑब्जेक्ट मिरर से जितना दूर है उतना ही दूर इमेज भी मिरर से होगा, राइट। तो अगर ये जो r है वो q से 8 मीटर की दूरी पे है तो इसकी इमेज वुड बी समवेयर हियर, ठीक है, वो कहीं यहाँ होगी। जो पॉइंट जो है वो Q से कितना दूरी होगा, वो 8 मीटर की दूरी पर होगा, ठीक है। दिस इज लाइक R डैश, ठीक है, R डैश इज द मिरर इमेज ऑफ द R पॉइंट, ठीक है। तो R डैश है। अब हमें पता चल गया कि इमेज कहाँ बन रही है, R डैश पे बन रही है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि अगर ये जो कैमरा है जो M पे रखा हुआ है, अगर हम इसको फोकस करना चाहते हैं तो फिर हमें डायगोनली इसको फोकस करना पड़ेगा, तभी तो R डैश फोकस में आएगा, तभी तो क्लियर इमेज बनेगी R डैश की, राइट। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, क्लियर इमेज चाहिए। क्लियर इमेज का मतलब कि भाई फोकल लेंथ शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द इमेज, राइट। तो अब क्योंकि हमें चाहिए क्लियर इमेज तो हमें फोकस कहाँ तक करना पड़ेगा, इस पॉइंट पे R डैश पे। तो मतलब इस लेंस का या फिर जो कैमरे का लेंस है इसका फोकस कहाँ होना चाहिए, R डैश पे होना चाहिए, राइट। लेट्स सी कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। अगर हम इसे मेजर करना चाहें तो आप M से लेके R डैश तक को ज्वाइन करो, ठीक है, इट वुड बी लाइक दिस, है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए वैसे तो। अब देखो M से लेके R डैश तक की डिस्टेंस कितना होगा, क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग अ सिंपल फॉर्मूला नोन एज द पाइथागोरस थ्योरम, राइट। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि भाई एम आर डैश का डिस्टेंस कितना है। एम आर डैश का डिस्टेंस अगर मुझे पता करना है तो मुझे क्या क्या पता होना चाहिए, एम आर का डिस्टेंस प्लस मुझे पता होना चाहिए आर आर डैश का डिस्टेंस। क्यों, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम बन रहा है, देखो यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री, दिस इज द हाइपोटेनस, दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस, गॉट इट। तो हमने इस तरीके से कर दिया। अब मुझे एम आर डैश का वैल्यू चाहिए, ठीक है, एंड दैट वुड बी इसका स्क्वायर। अब एम आर का क्या वैल्यू है, 4 का स्क्वायर, आर आर डैश कितना है, 16 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कि 4 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर हम लोग अगर इसे कैलकुलेट करेंगे, पूरा जब कैलकुलेट करेंगे, वी डोंट नीड टू डू द होल कैलकुलेशन हियर, यहाँ पे आप बीच में ही पता कर सकते हैं। कैसे, अब आप मुझे एक बात बता दीजिए कि भाई अगर 4 है और 16 है, राइट, तो इसका मतलब ये जो हाइपोटेनस होगा वो सबसे बड़ी आर्म होता है कि नहीं होता। जब कभी भी हम बात करते हैं किसकी, राइट एंगल ट्राइंगल में, तो हाइपोटेनस सबसे बड़ा आर्म होता है, राइट। बेस भी छोटा होता है, मतलब हम लोग अगर बोले तो हाइपोटेनस बड़ा होता है बेस से, हाइपोटेनस बड़ा होता है परपेंडिकुलर से। ये चीज हमको पता है राइट एंगल ट्राइंगल के केस में। सिर्फ इसी बात को नोट करते हुए मैं ये कह सकती हूँ कि भाई ये जो आर्म होगी एम आर डैश वो 4 से भी बड़ी होगी और 16 से भी बड़ी होगी, राइट। तो देखो मेरे पास ऑप्शन है 8, 4, 16 और मोर देन 16, तो डेफिनेट सी बात है मोर देन 16। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया कि भाई अगर हमें एम डैश को, मतलब ये जो एम है कैमरा जहाँ एम पे रखा है, यहाँ पर अगर मुझे आर डैश की क्लियर इमेज चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका जो फोकस है वो कितना रखना पड़ेगा, मोर देन 16 मीटर रखना पड़ेगा, तभी जाके मुझे क्लियर इमेज मिलने वाला है, गॉट इट। फटाफट से आप इसे नोट कर लीजिए और हमारा ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सो दिस इज द क्वेश्चन जो कि आपको स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 के फॉर्म में, दैट मीन्स असर्शन एंड रीजनिंग। रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड गिवन द करेक्ट ऑप्शन, सॉरी सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 हमें कह रहा है इवन व्हेन 1/2 ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर
द लेंस विल प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज। इसमें आपको बोला गया है कि अगर आप कन्वेक्स लेंस को आधा एक ब्लैक पेपर से कवर अप कर दो तो भी जो इमेज हमें मिलेगी किसी भी ऑब्जेक्ट की वो फुल इमेज मिलेगी। ठीक है, ये स्टेटमेंट 1 बोला गया है। सेकेंड स्टेटमेंट बोला गया है इंटेंसिटी ऑफ इमेज इज रिड्यूस्ड व्हेन वी कवर द हाफ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस विद अ ब्लैक पेपर। सेकेंड स्टेटमेंट बोला कि भैया कि ये जो इमेज हमें मिल रही है वो काफी डिम मिलेगी, मतलब उसका जो इंटेंसिटी होगा दैट वुड रिड्यूस। ठीक है, ये बोला गया है। तो आपको क्या लगता है कि जो स्टेटमेंट 1 है क्या वो करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 क्या वो करेक्ट है? इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, रे डायग्राम ट्राई करते हैं। ठीक है, सो हम लोग क्या करते हैं, रे डायग्राम ट्राई करते हैं। सो आई एम मेकिंग अ कन्वेक्स लेंस हियर, यहाँ पे मैं एक कन्वेक्स लेंस बना देती हूँ। ठीक है, और इस कन्वेक्स लेंस को हम हाफ क्या करेंगे, ब्लैक पेपर से ढक देंगे। ठीक है, तो ये जो ब्लैक कलर की लाइंस आप देख रहे हैं इसका मतलब यहां से हमने क्या किया, ब्लैक पेपर से उसको ढक दिया है। अब हम देखते हैं इसका रे फॉर्मेशन किस तरीके से रे फॉर्म होगी यहां पर। लेट मी मेक द प्रिंसिपल एक्सिस फर्स्ट। सो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस आई हैव मेड। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाला पार्ट हमने ब्लैक पेपर से कवर अप कर दिया है। ऑलराइट, और ये काफी ज्यादा थिक लेंस है। ऑलराइट, अब देखिए मान लीजिए यहां पर है फोकस, दिस इज F1 और बिल्कुल इतनी ही दूरी पर होना चाहिए फोकस 2। दूसरी तरफ हमने बना लिया है 2F1 यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट, और इतना ही डिस्टेंस हमारा यहां पर भी होना चाहिए यानी कि 2F2। अब देखिए हमारी जो ऑब्जेक्ट है, लेट इट बी कि भाई वो 2F1 पर है। ठीक है, ये है हमारी ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है हमारी ऑब्जेक्ट। देखते हैं कि इसकी जो इमेज है वो कैसे बनती है। ठीक है, क्या वो आधी कटी हुई बनेगी या फुल बनेगी, ये हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, लेट मी चूज द अलग कलर। ऑलराइट, तो देखिए हमारी सबसे पहले रे जाएगी पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्योंकि पैरेलल जा रही है सो इट विल पास थ्रू दी फोकस, सेकेंड फोकस। ठीक है, सो इट वुड बी लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे मैंने एरोज बना दिए, यू विल बी गेटिंग दैट। सेकेंड जो रे जा रही है वो ऑप्टिकल सेंटर से जानी चाहिए, राइट। सो ऑप्टिकल सेंटर से ये मिली और यहाँ से मिल गई ऐसे। ठीक है, सो यहाँ से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। ये है ऑप्टिकल सेंटर से जाती हुई लाइट रे जो बिल्कुल सीधी निकल गई। तीसरी लाइट रे हम इस फोकस से भेजते हैं। ठीक है, एंड इट विल बिकम पैरेलल, so it will become parallel like this. ठीक है, these are the rough diagrams, you can use scale while drawing the lines, make sure you do that. alright, अब देखिए हमारी जो इमेज हमें मिलने वाली है वो हमें कहाँ मिल रही है, 2F2 पे मिल रही है। ठीक है, दिस इज द इमेज विच इज इन्वर्टेड राइट हियर। ठीक है, 2F2 पे मिल रही है, 2F1 पे थी वो बेचारी, 2F2 पे ही मिल रही है। अब आप यहाँ पर एक चीज नोटिस कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट हमारी बड़ी है। ठीक है, यू कैन सी दैट यहाँ पर, लेट मी टेल यू। अब आप देखिए ऑब्जेक्ट हमारी है, राइट, इसकी जो इमेज मिल रही है वो इन्वर्टेड मिलनी चाहिए। अब मुझे बताइए कौन कौन सी लाइट रे वहां तक ऑब्जेक्ट तक नहीं पहुंच पाएंगी, 2 लाइट रेज अब नहीं पहुंच पाएंगी। क्यों? क्योंकि देखो पहली वाली जो लाइट रे है वो पैरेलल गई एंड इट विल मूव अप टू दी फोकस, फोकस से चले जाएगी। ठीक है, इस लाइट रे के रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी तो वो चले जाएगी। सेकेंड वाली जो लाइट रे है जो कि ऑप्टिकल सेंटर से जा रही थी वो यहाँ पर रुक जाएगी क्योंकि यहाँ पर तो हमने ब्लैक पेपर रखा हुआ है, राइट, तो वो आगे नहीं जा पाएगी। दैट मीन्स ये वाला जो पार्ट है दिस वुड बी कैंसल्ड आउट, ये वाला पार्ट पीछे जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि हमने हाफ से उसको ढका हुआ है, ब्लैक पेपर से हाफ पार्ट ढका हुआ है, दैट इज वाई। सेकेंड वाली जो हम फोकस से भेजेंगे वो यहीं तक ही रह जाएगी, इसके बाद ये वहां तक पहुंचेगी ही नहीं, राइट। लेकिन एक लाइट रे जो कि हमने पैरेलल भेजी थी, सबसे पहली वाली जो पैरेलल भेजी थी वो फोकस से जाकर इस जगह पर बना रही है। एंड कैन यू सी इट कि हालांकि हम 2 लाइट रेज जो है मिरर को क्रॉस नहीं कर पाएगी, मिरर से रिफ्रैक्शन नहीं हो पाएगा, लेकिन स्टिल एक लाइट रे ऐसी है जो ऐसा कर रही है, राइट। और हमको ये बात पता है क्योंकि यू कैन सी दैट कि अब ऑब्जेक्ट है एंड यू आर गेटिंग अ फुल इमेज। तो पहली बात तो ये पता चल गई कि अगर आप आधे कन्वेक्स लेंस को कागज से ढक भी दो, ब्लैक पेपर से उसको ढक भी दो, तो भी यू विल बी गेटिंग द फुल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये बात हमको समझ में आई, राइट। किस तरीके से बनेगी आप देख सकते हैं, यू आर गोइंग टू गेट दी लाइट रेज, राइट।
अब सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, तो हमें ये पहले पता चल गया है कि भाई फुल इमेज, कंप्लीट इमेज हमको मिलेगी, तो मतलब ये जो स्टेटमेंट 1 है ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, ये बात हमें पता चल गई। सेकेंड जो आप देख सकते हैं स्टेटमेंट 2, इंटेंसिटी ऑफ इमेज इज रिड्यूस्ड व्हेन वी कवर द हाफ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस विद अ ब्लैक पेपर। इसका मतलब ये क्या कर रहा है कि भाई इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी अगर हम ऐसा करते हैं तो कैन यू सी दैट, यस इंटेंसिटी इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड। व्हाई सो? क्योंकि आप देखो सिर्फ एक लाइट रे, जहां पर 3 लाइट रे पहुंचकर इमेज बननी थी वहां पर अब क्योंकि हमने उसको ब्लैक पेपर से जो है ढक दिया है, तो अब वहां पे सिर्फ एक ही लाइट रे जा रही है। कैन यू सी दैट, सिर्फ एक ही लाइट रे वहां पे जाके इमेज फॉर्म करे, तो जहां पे 3 लाइट रेज जाना चाहिए था वहां पर एक जा रही है। दैट इज वाई उसकी जो इंटेंसिटी है, जो कि यू कैन से होना चाहिए वहां पे, वो नहीं होगी, राइट? क्योंकि अगर ऐसा होता, ये ब्लैक पेपर से नहीं ढका होता, तो ये तीनों ही लाइट रेज इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करती। अब क्योंकि 3 लाइट रेज मिल रही हैं तो तीनों की इंटेंसिटी भी मिलती, दैट इज वाई यू आर गोइंग टू गेट द मोर इंटेंसिटी और क्लियर अच्छी इमेज मिलती। बट यहाँ पर क्या हुआ, हमने तो आधा ढक दिया, तो आधे पार्ट की लाइट रेज तो पीछे गई नहीं, आधे पार्ट की लाइट रेज जहां पर जानी चाहिए थी वो उन्होंने पीछे जाके इमेज फॉर्मेशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया, राइट? दैट इज वाई सिर्फ आधे पार्ट से जाने वाली लाइट रेज ही इमेज बनाएंगी। दैट इज वाई सिर्फ हाफ ऑफ द इंटेंसिटी की आपको इमेज मिलने वाली है, समझे? तो इमेज भी रिड्यूस हो जाएगी। एंड सेकेंड पॉइंट इज कि भाई हमें ये पता चल गया है कि हमें फुल इमेज ही मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर आधा आप लेंस को कवर कर देंगे तो आपको सिर्फ आधी इमेज मिलेगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? ये बात समझ में आई? 2 चीजें हो रही हैं अगर हम आधा लेंस कवर कर दे कन्वेक्स लेंस को। पहली चीज फुल इमेज मिलेगी, सेकेंड चीज यू कैन से कम इंटेंसिटी यानी कि बहुत ही डिम इमेज मिलेगी, राइट? तो इसका मतलब ये जो बोला गया है कि भाई इंटेंसिटी कम हो जाएगी, ये भी करेक्ट बोला गया है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है? अब हमें पता चल गया दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, बट क्या सेकंड स्टेटमेंट पहले वाले का करेक्ट है? क्या उसको सही से समझा सकता है? मतलब जब हम लोग 1/2 ऑफ अ कन्वेक्स लेंस को कवर कर रहे हैं तो हमें कंप्लीट इमेज मिल रही है, क्या इस बात का रीजन ये है कि इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी? नहीं, राइट? तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट ये दोनों फैक्ट जो है वो करेक्ट है, राइट? एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं करेक्ट, बट जो है यू कैन से फैक्ट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 इज नॉट द रीजन ऑफ द स्टेटमेंट 1, ठीक है? रीजन यहाँ पे क्या हो रहा है, रीजन क्या है कि भले ही यू कैन से कि कम लाइट रेज जा रही हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए, बट दे विल फॉर्म द इमेज, क्योंकि यू कैन सी वो जाकर पूरी की पूरी इमेज बना रहे हैं, राइट? दैट इज व्हाई यू आर गोइंग टू गेट द कंप्लीट इमेज, ठीक है? कम से कम एक रे जाकर इमेज तो बना रही है, राइट? दैट इज द मेन थिंग, यू आर गोइंग टू गेट द कंप्लीट इमेज। बट रिडक्शन का कि भाई उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, इसका रीजन क्या हुआ? इसका रीजन ये हुआ कि आधी लाइट रेज तो ब्लॉक हो गई, तो जो भी इमेज बनेगी वो सिर्फ आधी रेज की वजह से बनेगी, तो उनकी इंटेंसिटी एड ऑन होगी। दैट इज वाई वो सिर्फ हाफ ऑफ द इंटेंसिटी का ही बन पाएगा, राइट? दैट इज वाई वी कैन से दैट कि भाई ऑप्शन ए तो गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें बोला गया है स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, जो कि नहीं। सो वी कैन से दैट कि भाई हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों ही करेक्ट हैं, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, ठीक है? तो हमारा बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। फटाफट से नोट कर लेंगे इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, ट्राई टू डू सो। लेट्स स्टडी फर्स्ट। A ray of light passing through a semi-circular block from air is shown below। तो देखो ये है एक सेमी सर्कुलर ब्लॉक, ठीक है, जो कि किसी एक मटेरियल का बना हुआ है, और जो लाइट रे है वो एयर में से, यानी इस ब्लॉक के बाहर क्या है, एयर है, ठीक है? एयर में से जो लाइट रे है वो इस ब्लॉक के अंदर एंट्री मार रही है, ठीक है? अब देखो
कंसिडर द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाइज द ट्रू एंड द फॉल्स। ठीक है, तो हमें ये 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इन चारों में ट्रू फॉल्स बताना है भाई, कौन सच्चा है कौन झूठ। ठीक है, तो देखिए पहला क्या बोला हुआ है, देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ रे एट पी बिकॉज लाइट रे इंसिडेंट ऑन सेमी सर्कुलर ब्लॉक इज 90 डिग्री। तो अब आप मुझे बताइए कि देखिए अगर हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें तो हमें ये बात पता है कि जब कभी भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इंटरफेस पे वो क्या करती है, अपना पाथ चेंज करती है, लिटिल बिट इधर उधर हो जाती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट। बट यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा। रीजन इज कि भाई ये वाली जो लाइट रे है दैट इज 90 डिग्री टू द पॉइंट एट विच इट इज फॉलिंग। जिस जगह पर ये गिर रही है लाइट रे, उस जगह पर एक्चुअली ये सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इसी वजह से वो बिल्कुल सीधे चले जाएगी, क्योंकि ये रोल तो हमने पढ़ा है। अगर कभी भी लाइट रे बिल्कुल सीधे सीधे किसी दूसरे मीडियम में एंट्री मारती है तो वो अपना पाथ चेंज नहीं करती, राइट। ये बिल्कुल सही बात है। अब आप देखिए यहाँ पर क्योंकि ये बिल्कुल सीधे निकल रही है तो मतलब पहला स्टेटमेंट हो गया ट्रू। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। सेकेंड देखो, एज लाइट रेज एंटर्स द सेमी सर्कुलर ब्लॉक इट्स फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम। इज इट पॉसिबल? फ्रीक्वेंसी जो है सेम रहेगी लाइट रे की, क्या? बिल्कुल सही बात है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। जब हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे तब मैंने तुम्हें बताया था कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो चेंज होती हैं, ठीक है, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, एंड जिसमें से फ्रीक्वेंसी वो चीज है जो चेंज बिल्कुल नहीं होती, बिकॉज फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द सोर्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी तब चेंज होती जब डिफरेंट कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती इवेंचुअली, अगर हम कहें तो। ठीक है, दैट इज द मेन थिंग। और आपको यहाँ पे ये समझना है कि अब क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर सोर्स पे डिपेंड कर रहा है, एंड दिस इज नॉट इवन गेटिंग अप टू दी डिफ्रैक्शन भी नहीं हो रहा है, सॉरी डिस्पर्जन भी नहीं हो रहा है, राइट। दैट इज द मेन थिंग, डिस्पर्जन नहीं हो रहा है, लाइट चेंज नहीं हो रही है डिफरेंट कलर्स में, तो हम बोल सकते हैं यस ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन इफ दैट हैपेंस तो क्या होगा, यहाँ पर जो है फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, राइट। तो देखो ये भी हमारा स्टेटमेंट कैसा हो गया, ट्रू हो गया। थर्ड स्टेटमेंट जो है, wavelength of light rays as it enters the block decreases. All right, wavelength of light rays as it enters the block decreases. अब आप मुझे बताइए कि जब हमने बोला था वेवलेंथ मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जब हमने वेवलेंथ की टर्म्स में लिखा था तो हमने ये बताया था ये जो वेवलेंथ है, ठीक है, उन पे भी डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड पर भी डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि एक डेंसर मीडियम में एंट्री हो रही है, राइट, डेंसर मीडियम में एंट्री हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, स्पीड इज गोइंग टू डिक्रीज। लाइट जब एयर में से इस सेमी सर्कुलर जो है, जो भी है ये स्लैब वगैरह जो भी है, इसमें जब एंटर कर रही है तो इसका मतलब इसका स्पीड डिक्रीज होने वाला है जब ये अंदर चल जाएगी, राइट। स्पीड डिक्रीज होने का मतलब यहाँ पे इसका वेवलेंथ भी डिक्रीज होगा, राइट। दैट इज द मेन थिंग, दो चीजें यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, राइट। स्पीड भी डिक्रीज होगी, वेवलेंथ भी डिक्रीज होगी, क्योंकि मीडियम बदल गया है, ठीक है। दैट इज वाई यू कैन से कि भाई वेवलेंथ ऑफ द लाइट रेज एज इट एंटर्स द ब्लॉक डिक्रीजेस। बिल्कुल सही बात है, वेवलेंथ कम हो जाएगा बिकॉज अब हमें डेंसर मीडियम मिल गया है और रेयर से डेंसर में चली गई है लाइट रे, ठीक है। अब देखिए जो फोर्थ है, स्पीड ऑफ लाइट एज इट एंटर्स द ब्लॉक इंक्रीजेस। जैसे ही एयर से ब्लॉक में चली जाएगी लाइट रे, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। क्या ऐसा पॉसिबल होगा? नहीं ना, बिकॉज एयर जो कि एक रेयर मीडियम है, सिर्फ उसी में ही हम बोल सकते हैं कि मोस्टली अप्रोक्सीमेटली वो स्पीड ऑफ लाइट एंड वैक्यूम के बराबर होता है, राइट। फिर जैसे जैसे मीडियम आते हैं, जैसे कि ग्लास आ गया, जैसे कि लिक्विड आ गया, जैसे वाटर आ गया, राइट, तो इन सब मीडियम्स में जाते जाते उनका स्पीड कम हो जाता है, लाइट का स्पीड कम हो जाता है, राइट। तो चांस ही नहीं कि इसका स्पीड बढ़ जाएगा, राइट। दैट इज वाई ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है वो हो गया फॉल्स, गलत स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। तो हमारे फर्स्ट 3 तो ट्रू हो गए और लास्ट 1 हो गया फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा कौन सा करेक्ट है, ट्रू देखिए, फिर सेकेंड वाला ये ट्रू, तो हमारा सी ऑप्शन जो है करेक्ट है, ठीक है। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, वेवलेंथ चेंज होती है ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन एंड स्पीड चेंज होती है ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन,
राइट। उसके अलावा यू कैन सी कि भाई यहाँ पे जो फोर्थ स्टेटमेंट है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट एज इट एंटर्स द ब्लॉक इंक्रीजेस, गलत बात है क्योंकि स्पीड चेंज होती है, कम हो जाती है, इंक्रीज नहीं होती है। ठीक है, फटाफट से नोट कर लेंगे इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 बदल नहीं रहा है, अब आ गया, ये है क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है जैसा कि मुझे लग रहा है टोटली फैक्ट बेस्ड है। ठीक है, मतलब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये सिर्फ आपको दिमाग के बेसिस पे करना है, आपके दिमाग में वो टेबल बना होगा अगर, ठीक है, तो फिर आप फटाफट फटाफट बता देंगे आंसर, और अगर नहीं बना होगा, याद नहीं होगा, तो ये आपको डिफिकल्टी करेगा। ठीक है, जैसे देखते हैं अपन, Which of the following options is correct in case of a concave mirror? तो बात हो रही है concave mirror। Remember the concave mirror जहां पे 6 केसेस बनने वाले थे, राइट? 6 केसेस बनते हैं किसमें? concave mirror में, और convex mirror में सिर्फ 2 केसेस। Remember? अब देखो क्या क्या बोला गया है, आपको बोला है भाई करेक्ट कौन सा है, दैट्स इट, आपको सिर्फ करेक्ट बोला गया है। तो पहला देखो ए, एट सी, जब भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पर है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। ठीक है, इमेज कहां बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, राइट, बिकॉज हमें पता था सेंटर कर्वेचर, राइट। अब आप देख सकते हैं कि क्या इमेज की साइज इक्वल टू ऑब्जेक्ट होगी? यस, यस, और वो होगा रियल एंड इन्वर्टेड। ऑलराइट, तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि ठीक है हमारा जो ए ऑप्शन है करेक्ट है, समझ में आ गया। सेकेंड आप देखो बियॉन्ड सी, सी के पीछे, रिमेंबर जब हम इंफिनिटी से आ रहे थे, राइट, इंफिनिटी से आ रहे थे तो बियॉन्ड सी पे हमारा सेकेंड वाला जो कंडीशन था वो था। ठीक है, सेकेंड कंडीशन है। अब पहले जब देखो इन्फिनिटी पे थी ऑब्जेक्ट, फोकस पे थी इमेज, बहुत छोटी थी, बहुत छोटी थी, हम और पास लेकर आए ऑब्जेक्ट को, बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट खड़ी है तो इमेज पीछे खिसक गई है, मतलब बिटवीन एफ एंड सी, एंड डिमिनिश्ड है, राइट, बट हाईली डिमिनिश्ड नहीं है। रियल एंड इन्वर्टेड क्या क्या वो सब चीजें हैं? बियॉन्ड सी, बिटवीन एफ एंड सी, वेरी गुड, डिमिनिश्ड, वेरी गुड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, नो, ये गलती हो गई है यहां पर, दैट इज व्हाई दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। समझे? नेक्स्ट देखते हैं बिटवीन एफ एंड सी। चलो अभी क्या हो रहा था? बिटवीन एफ एंड सी मतलब बियॉन्ड सी का केस के बाद ऑन सी आ गया, एट सी पे जो इमेज बन रही थी, फिर हम और पास लेके गए सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में रख दी ऑब्जेक्ट, तो अब इमेज कहाँ जाएगी? सी के भी पीछे, बियॉन्ड सी जाएगी। तो देखो बिटवीन एफ एंड सी में बियॉन्ड सी होना चाहिए, ये तो इन्फिनिटी बनी हुई है, दैट इज व्हाई इट इज इनकरेक्ट। एनलार्ज बनेगी बियॉन्ड सी पे, एनलार्ज बनेगी बिल्कुल, और रियल एंड इन्वर्टेड होगी, गुड टू गो। नेक्स्ट देखो एट फोकस, जब फोकस पे ऑब्जेक्ट रखी होगी तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी, बिल्कुल सही बात है। हाईली डिमिनिश्ड, बिल्कुल गलत बात है, हाईली डिमिनिश्ड नहीं होगी, बहुत बड़ी बनने वाली है। एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट, गलत बात, ये भी गलत बात। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इस तरीके से आपको कहीं पर भी कैसे भी घुमा सकते हैं। अब अगर आपके दिमाग में टेबल होती तो तुरंत 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 अब कर देते। ठीक है, अगर दिमाग में नहीं है तो फिर सोचना पड़ेगा, इमेजिनेशन कर सकते हो कि भाई जब हम इन्फिनिटी पे हमने ऑब्जेक्ट रखी थी तो छोटी सी फोकस पे बन रही थी, पास लाए इमेज दूर खिसकी, थोड़ी सी बड़ी बनी, सी पे लाए सेम साइज बनी, बिल्कुल सी पे बनी। ठीक है, फिर और पास लेके आए तो अब वो पीछे चली गई, बड़ी बन गई, फिर और पास लेके आए तो बहुत बड़ी इन्फिनिटी पे चली गई जब हमने फोकस पे रखा ऑब्जेक्ट को, फिर कुछ ज्यादा ही पास लेके चले गए तो भाई वर्चुअल बन गई, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन गई। ऐसे रिमेंबर आप पूरे टेबल को कर सकते हो बाय विजुअलाइजिंग, एंड विजुअलाइजिंग के बेसिस पे अगर आपको टेबल रिमेंबर नहीं हो, कई लोग क्या होता है कि नहीं याद कर पाते, तो दे कैन विजुअलाइज। देखो ऐसा नहीं है कि अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आपको छोड़ देना है, ऐसा नहीं करना है, आपको कोई और वे सोचना है कि भाई मुझे और किस वे से ये चीज़ याद हो, क्योंकि याद तो करना जरूरी है बेटा, समझ में आ रही है? ये बात याद करनी जरूरी है, टेबल शुड बी इन योर माइंड। कैसे डजंट मैटर, कोई भी मेथड यूज करो,
तुम चाहे टेबल को बार बार बना के देखो, विजुअलाइजेशन करो, डायग्राम से समझो, ठीक है, या किसी और की हेल्प से समझो, बट दैट शुड बी इन योर माइंड इज द लास्ट गोल। समझे, गोल यही होना चाहिए कि भाई तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। अब कैसे हो रहा है वो तुम्हारी पे है कि तुमको कैसे पसंद आता है। तुमको विजुअलाइजेशन करने से पसंद आता है, वैसे करके लर्न करो, दिमाग में रखो। अगर तुमको रिमेंबर करके आता है, भाई रट्टू तोता करके जल्दी जल्दी कर सकते हो तो वो करो, बट इट शुड बी इन योर माइंड, दैट इज द मेन थिंग। ठीक है, फटाफट से नोट कर लो इसे। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑल। राइट, प्रिज्म बेस्ड है। अब प्रिज्म में जो जो बातें तुम्हें याद रखनी चाहिए वो सब यहाँ पता चल जाएंगी। समझे, देखो, read the passage carefully and answer the following questions. A beam of white light falling on a glass prism gets split into 7 colors marked 1 to 7 as shown in figure. अब तुम लोग को पता है भैया कि भाई 1 to 7 में कौन से कलर्स आएंगे, सबको पता है। विबग्योर से याद रखना है, और वो भी उल्टा विबग्योर। समझे, जैसे व्हाइट लाइट अपनी यहाँ से गई, रिफ्रैक्शन हुआ, अगेन रिफ्रैक्शन हुआ, तो विबग्योर उल्टा उल्टा होना चाहिए, रिमेंबर। तो मतलब वी नीचे आएगा, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। विबग्योर नीचे से ऊपर। तो अब तुम्हें पता चल गए कलर्स, कलर्स पता चल गए, वेरी गुड। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट हमको बताना है कौन सा है। द कलर एट पोजीशन मार्क्ड 5 इज सिमिलर टू द कलर ऑफ गोल्ड मेटल। पांचवे पे कौन सा कलर है? पांचवे पे अपना कलर है ब्लू, है ना। देखो 5 पोजीशन पे कौन सा कलर है अपना? ब्लू कलर है। देखो पांचवे पे ब्लू कलर है। अब बताओ तुम खुद से, क्या ब्लू कलर गोल्ड कलर के जैसा जैसा दिखता है? वो तो येलो दिखता है ना। येलो हम बोल सकते हैं सिमिलर टू गोल्ड, बट ब्लू को तो हम नहीं बोलेंगे, तो इनकरेक्ट हो गया हमारा ऑप्शन, इनकरेक्ट। बी देखो, द कलर एट पोजीशन मार्क्ड 2 हैज लॉन्गर वेवलेंथ देन 1। अब बोला गया है कि 2 पे जो कलर है उसकी वेवलेंथ 1 वाले कलर से ज्यादा है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड की। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, तो मतलब 1 पोजीशन पे जो कलर है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, ना कि 2 पोजीशन की, राइट। दैट इज व्हाई ये भी हमारा हो गया है गलत। थर्ड देखो, द कलर एट पोजीशन 7 इज वॉयलेट। 7 पोजीशन पे वॉयलेट है, ट्रू बात है ना, हम लोग को पता चल गया, सी करेक्ट है। द कलर एट पोजीशन मार्क्ड 5 हैज हायर स्पीड देन 1। द कलर एट पोजीशन 5, पांचवे पे जो कलर है मार्क्ड, उसकी स्पीड 1 से हाई है, गलत बात। सबसे ज्यादा तेज स्पीड सातों कलर्स में से किसकी है? रेड की। समझे, तो यहां पर आपको हाई वेवलेंथ रेड की मिलेगी, हाई स्पीड रेड की मिलेगी। समझे, यहां पर आपको मेन चीज देखनी है। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो हमारा एक ही ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज सी, कि भाई 7th पोजीशन पे है वॉयलेट कलर। ये चीज हमारी हो गई पक्की। ठीक है, जो चीज मैं तुम्हें रिमेंबर करने बोली है वो क्या बोली है? वैसे मैं उसे अगले क्वेश्चन में बताती हूँ, तुम अभी फटाफट से इसे तो नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब मैं यहाँ पे बताऊंगी आपको क्या क्या रिमेंबर करना है, क्या क्या नहीं। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है। अगेन हम कलर्स लिख लेते हैं भाई। हमारा 7 पे आ गया वॉयलेट, 6 पे इंडिगो, 5 पे ब्लू, 4 पे ग्रीन, 3 पे येलो, 2 पे ऑरेंज, 1 पे रेड। ठीक है, हो गया, विबग्योर हो गया। अब देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। पहला देखो, द कलर्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ आर। अब बताओ मुझे कहां से कहां वेवलेंथ इंक्रीज होती है। इसको पता करने के लिए सबसे पहली बात तुम्हें क्या ध्यान में रखनी है? रेड कलर इज हैज द हाईएस्ट वेवलेंथ। ठीक है, तो इसका मतलब भाई नीचे से ऊपर बढ़नी चाहिए, राइट। इसका मतलब देखो, रेड कलर में तुम्हें कहां बताऊं, देखो
मैं तुम्हें बताती हूँ। वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ जो है ना, अगर हम बात करें तो हाईएस्ट किसके पास होती है, रेड के पास, ठीक है, रेड के लिए मैं आर लिख रही हूँ, हाईएस्ट होती है रेड के पास, गॉट इट, रेड के पास हाईएस्ट है। तो अगर हमें क्या बोलना है, इंक्रीजिंग वेवलेंथ में बताना, तो मतलब नीचे वाले के पास सबसे कम, फिर ऊपर आएंगे, फिर ऊपर आएंगे, फिर ऊपर, तो पहला नंबर क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए 7 आना चाहिए, ठीक है, ताकि 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 फिर 6 पर आए, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, क्योंकि 1 पे तो सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर होना चाहिए था 1, यहाँ पर होना चाहिए था 7, दिस इज ए गलत, दिस इज अ गलत स्टेटमेंट, ठीक है, क्यों गलत स्टेटमेंट, क्योंकि भाई 7 वाले के पास तो सबसे कम थी और वहां से इंक्रीज होते होते ऊपर जाना था, पर देखो इन्होंने तो 1 के पास सबसे कम रखा है, बल्कि 1 के पास तो सबसे ज्यादा होता है, गलत है स्टेटमेंट। दूसरा बात देखो, द कलर्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी आर, अब मैं तुम्हें एक बात बता दूं, रिमेंबर जब मैंने फ्रीक्वेंसी की, जब मैंने रिफ्रैक्शन की बात की थी तो बोला था फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, लाइट रे की चेंज नहीं होती, बट अगर 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 लाइट रे 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं किसी मीडियम के अंदर, तो सभी 7 कलर्स की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, समझे। तो देखो अब क्योंकि यहाँ पे इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, वॉयलेट की, समझे। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो यहाँ पर जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो होनी चाहिए वॉयलेट की, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, समझे। तो देखो द इन दी ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, अब सबसे ज्यादा कहाँ है, वॉयलेट के पास, तो इंक्रीज कहाँ से होना चाहिए, रेड के पास से होना चाहिए, मतलब रेड की सबसे कम फ्रीक्वेंसी, तो देखो रेड 1 लिखा हुआ है, मतलब रेड सबसे कम, फिर थोड़ी ज्यादा, फिर थोड़ी ज्यादा, फिर थोड़ी ज्यादा, फिर थोड़ी, फिर थोड़ी, तो ये अपन बोल सकते हैं अपन सही है ना, 7 की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। अब देखो द कलर्स इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्पीड, सबसे ज्यादा हाई स्पीड किसकी होती है, रेड की, समझे। यहां पे मैं लिख देती हूं, हाई स्पीड किसकी होनी चाहिए, रेड, रेड की होती है सबसे हाई स्पीड, ठीक है। तो देखो डिक्रीजिंग स्पीड बोला गया है, डिक्रीजिंग स्पीड बोला गया मतलब सबसे ज्यादा रेड की, फिर धीरे धीरे करते 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 1 की सबसे कम स्पीड, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं ना, देखो यहाँ पे क्या बताया हुआ है, 7 की सबसे ज्यादा स्पीड बताया हुआ है, लेकिन हाई स्पीड तो रेड की होती है, तो भाई यहाँ पर ये उल्टे पुल्टे कर दिए इन्होंने और हो गया ये स्टेटमेंट गलत। द कलर्स इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग डेविएशन, अब डेविएशन सबसे ज्यादा किसके पास होता है, देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, हाई डेविएशन, हाई डेविएशन जो है ना वो किसके पास होता है, वॉयलेट के पास, और सबसे कम डेविएशन किसके पास होता है, रेड के पास, ठीक है। तो देखो तुम्हें 4 चीजें रिमेंबर करनी, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा, हाईएस्ट वेवलेंथ रेड की, हाईएस्ट स्पीड रेड की, फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वॉयलेट की, हाईएस्ट डेविएशन वॉयलेट का, समझे। तो मतलब दोनों के पास दो चीजें बराबर बराबर बट गई है। अब देखो इस ऑप्शन क्या ये करेक्ट है, द कलर्स इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग डेविएशन, डिक्रीजिंग डेविएशन, या सबसे ज्यादा डेविएशन किसके पास है, वॉयलेट के पास सबसे ज्यादा डेविएशन है, और देखो इन्होंने किसके पास दिखाया है, रेड के पास सबसे ज्यादा दिखाया है, गलत बात है। तो भाई डी ऑप्शन हमारा करेक्ट जो है इनकरेक्ट हो गया, गलत हो गया, बी हमारा करेक्ट है, ठीक है। अब आप इसे फटाफट से नोट करो, लेकिन 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 हमें आपको, अगर आप प्रिज्म की बात कर रहे हो, ऐसा क्वेश्चन कभी आ गया जिंदगी में, तो इसके लिए आपको क्या रिमेंबर करना होगा, एक तो विबग्योर नीचे से ऊपर जाता है, पहली बात, दूसरी बात ये हाईएस्ट वेवलेंथ रेड की, हाईएस्ट स्पीड रेड की, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वॉयलेट की, हाईएस्ट डेविएशन वॉयलेट का, अगर ये याद रख लिया तो बाकी सब तुम अपने आप कर पाओगे, समझे। फटाफट से नोट कर लो। राइट, तो देखो इस तरीके से तुम ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, बट तुम्हें बस बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए वो तो करने ही करने हैं, मतलब उनमें तो तुम्हें महारत हासिल करनी है, बाकी आप थोड़े बहुत कम पढ़ सकते हैं, बट पढ़ना सभी को है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि पढ़ना छोड़ दो, ऐसा नहीं करना है। इंपॉर्टेंट फोकस किस पे रखो, जो तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, वो मैंने तुम्हें मेजर टॉपिक्स बता दिए, राइट। सो अब हम जो ये चैप्टर है वो क्लोजिंग सेरेमनी कर रहे हैं आज हम इस चैप्टर की। नेक्स्ट क्लास में हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी स्टार्ट करने वाले हैं, दैट वुड बी द लास्ट चैप्टर, ठीक है, उसको हम स्टार्ट करेंगे। सो आई एम एंडिंग द लेक्चर हियर।
So thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos. Thank you so much.